Welcome all of you. Let me introduce myself. My name is Sureka Bhosle and I'm entrepreneur, I'm mentor, trainer and counselor. And today I will be conducting session on career guidance to uphold your child's future. So I hope that this session will add insights to you. And as there are number of people from different cities from all over Maharashtra, some people are from Delhi also. So I will take this opportunity to conduct this session in Hindi and English. So some parents who are from village areas are also able to understand. So some brief information about me. As I told you, my name is Sureka Bhosle and I am an alumni of Indian School of Business. I have got an opportunity to do my management studies from Indian School of Business. और मैं जो है वो 2 कंपनीज रन करती हूँ. द फर्स्ट कंपनी इज विद द नेम ग्लोब्रिज एंड अनदर कंपनी विद द नेम ऋषि कंप्यूटर एजुकेशन. So since last 18 years, I am running this educational institute with the name Rishi Computer Education. And since last 2 years, I am running this GlobeReach company, which is one IT firm as well as digital marketing agency. So we offer multiple services for the students and for the entrepreneurs and for the professionals as well. Connected to this, इसको ही connection के लिए we have our own blog named as Rishi Blog Buddhi, जो करियर के बारे में जो भी आपके कंसर्न्स है, स्किल्स के बारे में you will find all the information here in our Rishi Blog Buddhi. And we have our own job portal with the name Employable Market. So soon it will be available for you people also. So you can take opportunity to join there and you will get many resources by joining this Employable Market portal. तो आपको अगर जॉब अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए पोर्टल तैयार किया गया है. एंड जो भी ऑनलाइन प्रेजेंस, आजकल का ट्रेंड है कि ऑनलाइन का जमाना अभी आगे आगे बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन के जमाने के साथ अलाइन करने के लिए और करंट ट्रेंड्स के जो स्किल्स है उसको अलाइन करने के लिए वी हैव आल्सो लॉन्च्ड आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द स्किल डेवलपमेंट इन आईटी सेक्टर एंड दैट इज विद द नेम ऋषि ऑनलाइन बुद्धि. तो ऋषि ऑनलाइन बुद्धि में भी यू विल गेट मेनी रिसोर्सेस. And yes, the personal brand is very important. So we have launched our recent product profile card, which will help you to brand yourself. So this is all about me. You can just go through my website and you can just go in the depth details. But today I'm very happy that you people are here and you taken out time to attend this session and add insights and add value to your career. तो हम लोग स्टार्ट करने के पहले व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट हियर वी विल जस्ट स्टार्ट विथ वन मूवी क्लिप. I will play this for you and then once we complete with this movie clip, then we will start with our main session. We will just begin with this session and I know that all are confused about their career and you are here to know more about the career options. Before going for career options, हम लोग थोड़ा सा insights add करेंगे कि exactly career क्या होता है. तो ये session में हम लोग क्या basically देखने वाले हैं. First of all, हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं हमारे करियर के बारे में. एक्चुअली आजकल का अगर ट्रेंड देखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे हमें अवेलेबल है,
but then too we are really confused about career. और एक तो है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें हमारा पैशन परस्यू करना चाहिए, हमें करियर अचीव करना चाहिए, हमें हमारा गोल अचीव करना चाहिए, लेकिन रियल सेंस में क्या हमें करियर और पैशन, ये जो दो वर्ड्स है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, सच में वो क्लैरिटी है कि हम लोग ये लाइफ का डिसीजन बराबर ले सकते हैं। और मेरे लिए ये कौन से करियर ऑप्शंस है जो 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। उसके बाद वंस वी अंडरस्टैंड विथ हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर मी, फिर हम लोग एक्चुअली डीप कंसर्न में जाएंगे कि देयर वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच इज करियर काउंसलिंग एंड लॉजिकल काउंसलिंग। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि करियर काउंसलिंग एग्जैक्टली क्या होता है और लॉजिकल काउंसलिंग क्या होता है, और अगर राइट करियर पाथ आपको चूज करना है तो डिसीजन मेकिंग आपका कैसे होना चाहिए। तो these are all takeaways from the session। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं लाइफ में। तो हम लोग एक स्टोरी लेते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है। क्यों कंफ्यूज होता है? नाउ सी इज अदिति, और अदिति को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, दिमाग में तो बस सोच 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 चली रही है कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। एंड व्हाई इट हैपेंस, ये एंजाइटी क्यों आता है, पेरेंट्स को भी ये एंजाइटी क्यों आता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं कि करंट ट्रेंड्स में इतना कुछ चल रहा है और हम लोग कंपैरिजंस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी है, जो बच्चे भी है, वो क्या करते हैं कि मेरी मम्मी तो डॉक्टर है, मेरे पापा तो इंजीनियर है, मेरा भाई तो बिजनेस कर रहा है, फिर मेरे अंकल ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड ये कर रहे हैं, फ्रेंड के बच्चे ये कर रहे हैं, सो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये जो बहुत सारी चीजें हमारे अराउंड हो गई है और बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें भी दूसरे लोग कैसे करियर अचीव कर रहे हैं, उनको देख देख के हमें स्ट्रेस आ जाता है और फिर बहुत एंजाइटी क्रिएट होती है कि सच में मुझे क्या करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, एंड वी आर रियली कंफ्यूज। तो फिर सबसे फर्स्ट बात क्या है, एक्चुअली ये कंफ्यूजन का फर्स्ट बात क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रियली डू यू नो व्हाट यू डोंट नो? आपको पता भी है क्या कि आपको कितनी सारी चीजें पता ही नहीं है? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहला बात हम ये करते हैं कि हमें हमारे खुद के बारे में ही इतना जानकारी नहीं है। मतलब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो मैम, हमारे खुद के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब क्या है? बिकॉज वी डोंट नो आवरसेल्व्स। हम लोग को टाइम ही नहीं है, हमें दूसरों का सोचने के इतना सोचते हैं हम दूसरों के बारे में कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए हमें टाइम ही नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शन है टेक्नोलॉजी के हमारे अराउंड। सो गोइंग थ्रू ऑल दोज डिस्ट्रैक्शंस, हम लोग को टाइम ही नहीं है कि हम लोग खुद के बारे में सोचे कि सच में मुझे जिंदगी में क्या करना है। तो पहली तो स्टेप अगर करियर के बारे में लेनी है ना, तो पहले नो योरसेल्फ। हमें खुद को समझना है। खुद को समझना है मतलब क्या करना है? आज मैं आपको ना एक अच्छा फॉर्मूला देने वाली हूँ कि वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि खुद को कैसे रियलाइज करना है और कैसे समझना है। और 3 ही सिंपल क्वेश्चंस है, उसके अराउंड ही आपको जाना है कि ये 3 क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि हम लोग कैसे करियर में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आई लाइक टू डू, व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी, मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या मैं करने को आता है, एंड व्हाट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस के अराउंड ही हम लोग घूमते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें तो अच्छी लगती है, और हम लोग एक्चुअली ये जो जर्नी है पैशन और करियर का, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगी कि सच में अगर कितने सारे लोगों को यहाँ पे पैशन और करियर का डिफरेंस पता है, जस्ट टाइप, if you know that difference just type yes, and if you don't know that difference just type no in chat box। आप जरा चैट बॉक्स में लिखो कि कितने सारे लोगों को पता है कि सच में मेरा पैशन क्या है और करियर क्या होता है। Yes, I am waiting for answers. Many of you don't know, and some of them know that what is career. But now today again you will learn the very interesting thing कि
कैसे हमें वो करियर के जर्नी को के पास जाना है। तो ये अदिति को भी मैंने सिंपल पूछा। अदिति इज लिटरली रियली वेरी कंफ्यूज। वो एक्चुअली क्रिएटिव पर्सन है, लेकिन जो हमारा फील्ड चूज करने का वक्त जब आता है तो उसने, सबने बोला कि चलो कॉमर्स में जाओ, तो उसने कॉमर्स चूज कर लिया, बट नाउ शी इज नॉट लाइकिंग। तो अभी वो मेरे पास आई थी कि मैम क्या करना चाहिए करके। तो मैंने बोला देखो अदिति, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो अदिति को पहला स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चंस किया और अदिति ने आंसर करना स्टार्ट किया। तो अदिति को बोला पहले मुझे बताओ कि व्हाट यू लाइक टू डू, आपको क्या करना अच्छा लगता है। तो अदिति ने स्टार्ट किया कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। तो मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है, मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बनाना तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मुझे रीडिंग अच्छा लगता है, देन आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, मुझे छोटे छोटे बच्चों को सिखाना भी अच्छा लगता है, आई एम अ क्रिएटिव थिंकर। और बचपन में तो हम सब लोग ने ही एक्चुअली वो सपना देखा था कि आई वॉन्ट टू बिकम पायलट, आई वॉन्ट टू बिकम पायलट। वो एरोप्लेन उड़ते हुए देखा तो हम लोग को भी लगता है कि यस आई वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई। तो वैसे हर एक को लगता है। फिर अदिति ने देखो कि 15 अगस्त आता है, 26 जैन आता है, तो हमारा जो भारत के प्रति जो हमारा प्रेम है वो बहुत बढ़ता है, और फिर हम लोग को लगता है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो पैट्रियटिज्म की भी जब बात आती है तो हम लोग को लगता है कि यस हम लोग को कुछ करना चाहिए। अगर कुछ आईपीएल चल रहा है तो हम देखते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है तो देखते हैं, तो स्पोर्ट्स के प्रति भी हमारा जो कंसर्न है वो बहुत बढ़ता है और हम लोग को लगता है कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई आपको, तो अदिति को ये सारी चीजें अच्छी लगती है। सो वी लाइक नंबर ऑफ थिंग्स इन लाइफ, लेकिन हमें अलाइन किधर करना है, हमारा करियर कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा। तो अदिति को मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा, जस्ट ध्यान से सब लोग देखना, और ये फॉर्मूला आपको खुद के ऊपर भी अप्लाई करना है। सो आई आस्क अदिति, अभी अदिति आप क्या करो, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द थिंग्स। ये सारी चीजें तो है, इसमें भी आइडेंटिफाई करो। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसको जो मैच करती है वो चीजों को साइड में करो, वो नहीं करती है वो साइड में करो, और बाकी की उधर ही रहने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आइडेंटिफाई विच थिंग्स यू लाइक। आप उसको कर भी सकते हो, आपको अच्छा भी लगता है, आप कर भी सकते हो, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये जो ट्रुथ है लाइफ का, कि हम लोग जो ये करियर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना एजुकेशन करना है, बैक ऑफ द माइंड में क्या रहता है हमारे। कैन एनीबडी कैन आंसर इन चैट बॉक्स कि बैक ऑफ द माइंड में क्या रहता है। करियर बनाना मतलब उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, कि करियर करना है मतलब क्या करना है जिंदगी में। Happiness, yes, that gives you passion, is something that gives you happiness, to earn money, yes. Rikshit came to the point, make money, yes. Janet ma'am, yes, true. देखो कि पैसे के बारे में ही सब चीज आती है, ये बड़ी बड़ी बातें होती है, हमें तो हमारा पैशन परस्यू करना चाहिए, बाकी का सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जब हम लोग आते हैं ना, तब वो पैशन के टूवर्ड्स हम लोग एक्चुअली बस उसको एक डायरेक्शन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में होता है कि बहुत अच्छा एजुकेशन करके एक अच्छा डेजिग्नेशन हासिल करो और उसके बाद मुझे बहुत पैसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचोगे तो पैसा कैसे आएगा, हाउ दैट मनी विल फॉलो। अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पैसा आगे है और हम लोग उसके पीछे हैं, पैसा आगे और हम लोग उसके पीछे, तो ये उल्टा पोजीशन हो गया। एक्चुअली ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहिए हमें। एक्चुअली मनी कहाँ पे होना चाहिए, पीछे हमारे, हम लोग आगे और पैसा पीछे। कैसा, कैसे ये, वेदर इट इज पॉसिबल, यस डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, तो अदिति को बोला देखो अदिति, अभी तुम्हें तुम्हारे लाइफ के गोल के टूवर्ड जाना है, तो मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। करना चाहिए मतलब क्या, कि अल्टीमेटली मैं काम तो करते रहूंगी तो उससे तो कुछ पैसा तो आना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो फिर थोड़े दिन तक मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो अदिति को मैंने एग्जांपल दिया, देखो अदिति, मुझे तो ना सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू सिंग, ओके,
मैं गा सकती हूँ क्या? यस डेफिनेटली मैं गा सकती हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं गा ही सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा ही एक वेबिनार किया कि चलो मुझे ना फेसबुक पे लाइव जाना है एंड आई विल सिंग सॉन्ग्स फॉर यू, तो आप लोग आओगे क्या? वेदर यू विल बिकम द लिसनर टू माई म्यूजिक, या मेरे गाने सुनोगे क्या? तो दैट इज द क्वेश्चन मार्क टू मी. नो वन विल लिसन टू मी, क्योंकि मेरा जो गाना गाने का जो स्किल है that is not optimal, that which can contribute happiness to others. पैसा कब आता है? हमें जो काम अच्छा लगता है वो दूसरों को भी तो अच्छा लगना चाहिए. It should contribute in others' life. Then and only then money will follow you. ये सिंपल फंडा हम लोग भूल जाते हैं और हर एक जो चीज अच्छी लगती है उसके पीछे भागने लगते हैं कि शायद मुझे ये करना चाहिए, शायद मुझे वो करना चाहिए, एंड देन वी गेट कंफ्यूज्ड. yes or no, just type, give me feedback in the chat box. yes or no, ये सिचुएशन ऐसे हो जाता है हमारा? yes, so everyone is saying yes. yes, ऐसे सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें जिंदगी के टुवर्ड्स कैसे डिसीजन लेना है, वो कंफ्यूजन्स हमें क्रिएट होते हैं. डेफिनेटली यस. और इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए? तो अदिति को बोला देखो मैं गाना नहीं गा सकती दूसरों के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है. तो ऐसी जो सारी चीजें होती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं हॉबीज. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉबीज. तो हॉबीज को खुद के लिए करना चाहिए. ऐसा नहीं कि दूसरों को अच्छा नहीं लगता है तो मैं गाना गाना छोड़ दूं. मैं क्यों छोड़ूंगी? मैं तो घर पे बैठ के एक बंद कमरे में मैं खुद के लिए गाना गाऊंगी, खुद के लिए डांस करूंगी. कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इट गिव्स हैप्पीनेस टू मी. तो मुझे हैप्पीनेस जो चीजें देती है वो तो मुझे करनी ही चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए. लेकिन उसके लिए उतना ही वक्त बिताना चाहिए जितना जरूरी है. हम लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, गेम खेलने में घुस गए तो उसी में जाते. वो एक हॉबी है, उसको उतना ही वक्त देना चाहिए. अगर क्रिकेट खेलने जाना है तो उतना ही वक्त देना चाहिए. लेकिन हम लोग वो समझते नहीं और फिर पेरेंट्स हमें बोलते रहते हैं कि अरे ये टाइम इन्वेस्ट इधर करो, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और हम लोग ज्यादा वक्त उधर, अगर जरूरी चीजों को अगर आप लोग वक्त प्रॉपर वे से टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो यू विल नॉट अचीव योर सक्सेस. रिमेंबर दैट. तो अदिति को सिंपल बोला कि देखो अदिति, कि जितने भी आपको चीजें अच्छी लगती है आप कर भी सकते हो, लेकिन आप दूसरों को हैप्पीनेस नहीं दे सकते. मतलब हैप्पीनेस दोगे तो ही पैसा आएगा. मतलब वो सारी चीजें आपको करियर तक नहीं लेके जा सकती. दीज आर ऑल योर हॉबीज. सो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योर हॉबीज और उनको साइड में कर दो. देखो तो हॉबीज को अदिति ने साइड में करना स्टार्ट किया. तो अदिति बोली यस नाउ आई अंडरस्टूड. तो डांसिंग इज माय हॉबी, मेकिंग फ्रेंड इज माय हॉबी, स्पोर्ट इज माय हॉबी, रीडिंग इज माय हॉबी, लिसनिंग टू म्यूजिक इज माय हॉबी. तो देखो कि कितने हमारे दिमाग में सोच रहता है. अभी एक क्लियर पिक्चर मिल गया. तो नेक्स्ट थिंग इज नो व्हाट, अभी हम लोग आगे जाते हैं. तो अदिति को मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए अदिति, कि पहले तो सपने जो है ना, देखो सबको ही सपना देखना ही चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए. और वो सपने को बाद में टेस्ट भी करना चाहिए कि वेदर वी कैन अचीव दैट गोल. ड्रीम इज बेसिकली अ गोल एंड आई विल कम टू दैट. आई विल एक्सप्लेन यू कि वो गोल के टुवर्ड्स हम लोग कैसे जा सकते हैं. लेकिन उसके पहले हमारे जो सपने हैं वो सच में रियलिटी में आ सकते हैं क्या, उसका टेस्ट भी करना जरूरी है. तो अदिति को बोला देखो अदिति, इसमें से अभी आपके जो रिमेनिंग चीजें है ना उसमें से सपने आइडेंटिफाई करो. तो बोली नहीं समझ रहा है मिस. तो मैंने उसको बोला देखो अदिति, मैं जब बचपन में छोटी थी ना तब मुझे क्या लगता था कि मैं तो पायलट बनूं. एंड दैट इज माय जस्ट वो स्मॉल किड का जो थॉट प्रोसेस फैंटेसी होता है, उसमें मुझे लगता है कि मुझे ये बनना चाहिए वो बनना चाहिए. इट्स नॉट रॉन्ग, सपने तो देखने ही चाहिए, बस उसको एक बार टेस्ट करना चाहिए. तो अभी मैं बड़ी हो गई तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो पायलट होना है. लेकिन अगर अभी मैं ऊंचाई पे खड़ी होके नीचे जब देखती हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगता है. तो फिर
इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वेदर आई एम एबल टू बिकम अ पायलट? इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ वो नहीं है। सपने तो हमेशा ही देखने चाहिए, बस उसको एक बार टेस्ट करना चाहिए। और जो सपने सच में नहीं आ सकते, मुझे मालूम है कि ये मेरा चैलेंज है, सो इमीडिएटली उसको साइड में निकालना चाहिए। अदरवाइज हम लोग जो चीजें हो नहीं सकती उसके पीछे कितने लोग बताते हैं हमें, वो हिंट्स देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वी नेवर लिसन, यू नो। आजकल क्या हो गया है मालूम है, हम लोग एक ही कॉमन वर्ड बोलते हैं। क्या कॉमन वर्ड है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी कुछ बोलने का कोशिश करता है तो वी पीपल फील दैट वी नो एवरीथिंग, इजंट इट? यस और नो? जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स स्टूडेंट्स, यस और नो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दे ट्राई टू टेल अस, वो कोशिश करते हैं कि बताने का, लेकिन अरे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये इंटरेस्ट चीज क्या होती है ना, उसको समझना भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एक बहुत अच्छा डिश बनाया, लेकिन उसका कलर ना एकदम ब्लैक है। सो मैं बोल रही हूँ कि देखो कितना अच्छा डिश मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, प्लीज टेस्ट इट, प्लीज टेस्ट इट। लेकिन उसका कलर कॉम्बिनेशन और प्रेजेंटेशन देख के आपको लग रहा है कि वो अच्छी नहीं है, तो सिंपली यू आर डिनाइंग टू टेस्ट इट, यू आर जस्ट सिंपली डिनाइंग टू टेस्ट इट। तो अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया उसके पहले, आप कमेंट कैसे कर सकते हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, वेदर यू हैव इंटरेस्ट और नॉट? रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज द की पॉइंट टू सक्सेस। एवरी अपॉर्चुनिटी यू शुड एक्सप्लोर। हाथ मेले करने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड देन यू शुड डिसाइड वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। पहले ही हम ना पूरा डोर ही लॉक कर देते हैं। If we lock door, there is a chance to miss very good opportunities around us. Isn't it true or no? Not true. Just type true or not true in chat box. हम लोग ऐसा अगर करेंगे, एक्सप्लोर किए बिना ही अगर हमारा डिसीजन लेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम लोग प्रॉपर हमारे जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज है वो भी मिस कर सकते हैं। यस, एवरीवन इज विथ मी। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे समझने का जरूरत है कि अभी ये जो ड्रीम्स है उनको भी आइडेंटिफाई करो कि जो तुम लोग को नहीं लेके जा सकते तो उसको यहीं पे ड्रॉप करो और यहीं पे छोड़ दो। सो अभी अदिति को बोला कि अभी नेक्स्ट तुम ड्रीम आइडेंटिफाई करो। आपको तो अच्छा लगता है, आपको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन आप कर ही नहीं सकते। जैसे पायलट बनना मुझे अच्छा लगता है, मैं पायलट बनूंगी तो बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन मैं कर ही नहीं सकती। तो unnecessary, why I should waste time and energy on exploring the things which I can't pursue in my life? That is the key point. और एक यहाँ पे की पॉइंट अंडरलाइन करके दे रही हूँ, डिस्कशन इज द बेस्ट सोल्यूशन to come to one decision. Discussion is the best solution to come to one decision. और किसके साथ डिस्कशन करना चाहिए? वो फील्ड के एक्सपीरियंस लोगों के साथ, पेरेंट के साथ। वो अगर आपके फ्रेंड्स भी है लेकिन वो उतना मैच्योरिटी के होने चाहिए। डिस्कशन से आपको क्लैरिटी मिलती है, और अगर डिस्कस नहीं करोगे, डायरेक्टली डिसीजन लोगे, तो देयर आर मेनी चांसेस दैट यू माइट टेक रॉन्ग डिसीजंस। तो लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अदिति को फिर समझ में आ गया कि यस, कहाँ पे मैं मिस कर रही हूँ। तो अभी मुझे तो यहाँ पे मैं मिलिट्री में नहीं जा सकती, मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है, आई कांट बिकम अ पायलट। तो वो भी हो गया साइड में। नाउ थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। नाउ सी, बहुत सारे लोग है ना इसमें जाके फंसते हैं। उनको पता ही नहीं है कि जिंदगी में कहाँ पे जाना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग सब बोलते हैं कि क्या करेंगे सारा एजुकेशन करने के बाद। कोई बोलता है कि मैं जॉब करूंगा, कोई बोलता है मैं बिजनेस। लेकिन जॉब वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। तो अदिति को अभी मैंने बोला कि देखो कि आप क्या कर सकते हो, व्हाट आई कैन डू। आप जो कर सकते हो आप कर रहे हो, तो आपको पैसा भी मिल रहा है लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अदिति का ही सिचुएशन ले लो।
वो बहुत क्रिएटिव साइड की लड़की थी, लेकिन उसको कॉमर्स में एडमिशन ले लिया तो उसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया कैसे वैसे। कोई भी चीज पे एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट तो आना ही है। लेकिन उसके बाद वो अकाउंटेंट का जॉब जब करने जाती है तो उसको फ्रस्ट्रेशन आता है। जिंदगी में ये राइट पाथ अगर नहीं लेते हैं ना, और अगर वो मिस हो जाता है तो जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं होता, बिकॉज हमारा इनेट पोटेंशियल कुछ और है और हम कर कुछ और रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इट कैन नॉट एड वैल्यू टू अदर्स ऑल्सो एंड यूर सेल्फ ऑल्सो। खुद के लिए भी आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो और दूसरों के लिए भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, तो अदिति का परफॉर्मेंस तो कभी अच्छा ही नहीं होगा, उसको कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिलेगा, तो शी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और ऐसे ही लोग हम आजू बाजू में देखते हैं कि जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी जीने का मतलब ही जो एंजॉय करना है हर एक काम में, वही उनको नहीं मिल रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू मैनेज। और इसके लिए उनके जिंदगी में क्या आ जाता है? फ्रस्ट्रेशन। तो रिमेंबर, हमें जॉब भी नहीं करनी है, हमें हमारे पैशन तक पहुंचना है। तो अभी अदिति को बोला कि अदिति अभी देखो कि जो रिमेनिंग चीजें हैं उसमें से आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती है। तो डेफिनेटली अभी थर्ड आंसर आ गया, जो चीजें मुझे अच्छी लगती है तो वो मेरा करियर है। ये थर्ड क्वेश्चन में मुझे अच्छा लगता है, मुझे पैसा भी मिलेगा एंड आई कैन डू इट। तो फिर अदिति बोली कैसे? तो देखो ये तीन चीजें जो है, तुम्हारी पेंटिंग है, तुम्हारा क्रिएटिव थिंकिंग है, तुम्हारा टीचिंग है, इसमें से तुम्हारा करियर बन सकता है क्या? तो मैंने उसको क्वेश्चन किया, देखो यू आर अ गुड पेंटर, तो आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या? क्रिएटिव थिंकर हो, पेंटर हो उसका। तो उसने बोला यस मिस, मैं ना इतने अच्छे पोर्ट्रेट्स प्लान करती हूँ, वेन एवर देयर इज एग्जीबिशन, वो जो पोर्ट्रेट्स है ना मैं डिस्प्ले करती हूँ, और वो पोर्ट्रेट डिस्प्ले जैसे ही करती हूँ, पीपल आर रेडी टू पे, बाय इट, ओके, दे पे मनी एंड दे बाय इट, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा है उसमें कि लोगों को अच्छा लगता है, इट एड्स वैल्यू टू अदर पीपल, सो दे पे मनी। तो वहां पे आपको बहुत सारा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दूसरों के लाइफ में भी क्या कंट्रीब्यूट, मेरा स्किल क्या दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट इज योर पैशन। ये पैशन ने ठोक के आप करोगे। तो मैं पोर्ट्रेट बनाने, अदिति बोली, जब बैठती हूँ ना तो 12 आवर्स हो, 14 आवर्स हो, 16 आवर्स हो, इवन समटाइम्स आई सिट 20 कंटिन्यूअसली फॉर 20 आवर्स एंड आई एम नॉट बॉदर्ड। क्यों वो बॉदर्ड नहीं है? बिकॉज शी इज डूइंग द थिंग्स विच शी लाइक्स, जो उसको अच्छा लगता है। और फिर डेफिनेटली वो ये भी बोली कि टीचिंग भी मुझे अच्छा लगता है, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो बच्चे तो ऐसा हैप्पीली पढ़ लेते हैं कि अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो पेरेंट्स वांट्स दैट आई शुड टीच देयर किड्स। तो डेफिनेटली अदिति को क्रिएटिविटी में, एजुकेशन में ही करियर करना चाहिए। इजंट इट स्टूडेंट्स? yes or no, just type in chat box whether Aditi should do career in education. Some kids are having questions, but I will take question answer in question answer session because I want to complete this in flow. तो अदिति को एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ग्राफिक्स इंडस्ट्री में जाना चाहिए, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो फिर वो करियर के ऑप्शन तक बराबर पहुंच सकती है। तो जहां पे आपका पैशन है, जहां पे आपको घड़ी की तरफ बिना देखे काम करने का कब होगा? जब आपका इनेट पोटेंशियल वो है, जब आपका वो टैलेंट है और आपको वो करना अच्छा लगता है। जैसे मूवी में जाने के लिए आपको कुछ मस्का मारने की जरूरत नहीं है, क्यों? बिकॉज यू लव इट। पिकनिक पे जाना है, यू कैन एंजॉय। हमारे घर में शादी है तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन वही अगर एग्जाम आता है तो वी फील सो स्ट्रेसफुल। तो हमारी लाइकिंग की चीजें अगर हम करते हैं तो एडिशनल स्ट्रेंथ हमें वैसे ही मिल जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वी रीच टू आवर गोल। So if you want to do career, then first identify your passion, which will contribute in others' life, which will contribute in others' life. And therefore I say, हमेशा मैं बोलती हूँ कि if you want to become successful, help
others to become successful. क्योंकि आपका जो टैलेंट है ना वो दूसरों के काम में आएगा तभी पैसा आएगा, because we are in the relationship of give and take. Always we will be giving and taking. तो ये जो जर्नी है ऐसा ही मूव होता रहेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द करियर दैट हाउ यू शुड सिलेक्ट. और फिर हम लोग अभी आते हैं ये स्लाइड के बाद. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ करियर की करियर तक के डेस्टिनेशन तक हमें कैसे जाना चाहिए, करियर ऑप्शन कैसे चूज करने चाहिए अभी, क्योंकि आगे के स्लाइड में मैं आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू कराऊंगी एंड देन वी विल जंप इनटू द सेक्शन where really we will identify what is our innate potentials. So till this slide everything is clear to all of you. Just write clear word in chat box. Any questions, you keep it, we will take it in question answer session. Very good. So we will move towards our career options. तो अभी हमारे पास कुछ 10th के भी स्टूडेंट्स है, कुछ 12th के, कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं. So there is a big option that आगे क्या है. तो there are n number of options. I will just walk through all the options. Okay, just you keep your eye on the options. Okay, don't get frustrated, don't create anxiety. Okay, later on just we will switch to one path where you will get more clarity. तो 10th के बाद के ऑप्शंस पे आते हैं कि 10th के बाद तो इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, you can choose the paramedical option, you can choose the ITI option, you can choose the ITI option, you can use the short term courses, some different other courses also, and then we will jump to after intermediate. तो अभी हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि 10th के बाद इंटरमीडिएट में हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं. तो इंटरमीडिएट में एवरीवन नोज कि 2 साल का ये करिकुलम हमें कंप्लीट करना है. आइदर यू कैन गो इन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स. ये कोई भी स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर सकते हो. बस कुछ इनपुट्स दूंगी मैं इसमें कि अगर आप साइंस को ऑप्ट कर रहे हो तो आप आइदर पीसीएम या पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो रखोगे. अगर आपको मेडिकल में जाना है तो डेफिनेटली यू विल कीप पीसीएमबी, and if you opt for engineering then you will keep PCM. Otherwise you can opt for BSc also after taking all these subjects. लेकिन इसके साथ याद रखो कि लैंग्वेज के लिए ऑप्शनल एक IT सब्जेक्ट होता है. तो लैंग्वेज अगर आपका इतना अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन सिलेक्ट IT सब्जेक्ट. और अगर आप PCM के स्टूडेंट हो, दैट मीन्स यू वांट टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग और PCM रख रहे हो साइंस स्ट्रीम लेके, तो रिमेंबर कि आप लैंग्वेज और बायोलॉजी को स्किप करके यू कैन लर्न कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट. तो दिस इज द ऑप्शनल वोकेशनल सब्जेक्ट विच इज एडेड इन योर करिकुलम. तो ये पॉइंट आपको याद रखना है. और साइंस स्ट्रीम में आप आगे लाइब्रेरी साइंस में भी डिग्री कोर्स के लिए, इंटरमीडिएट प्रोग्राम के लिए जा सकते हो. देन कम टू कॉमर्स. कॉमर्स में भी अगेन सी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सिलेक्ट. 2 सब्जेक्ट होते हैं. मैथ्स वीक है करके हम लोग मैथ्स यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं 11th में, क्योंकि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है करके हम लोग एसपी सिलेक्ट करते हैं. कुछ बैड नहीं है, लेकिन मैथ्स को रखने से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज 12th के बाद ओपन रहती है. जैसे आपको बैथ में भी जाना है या तो आपको बीबीए में जाना है, बीएससी आईटी में जाना है, तो उसके लिए कंपलसरी है मैथ्स. मैथ्स अगर आपका है तो ही ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आपके लिए ये ऑप्शंस कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मेन क्राइटेरिया रहता है मैथ्स का. मैथ्स है तो ही आप ऑप्ट कर सकते हो. और कॉमर्स में भी सेम है. अगर आप लैंग्वेज में पुअर हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर आईटी सब्जेक्ट. देयर आल्सो आईटी सब्जेक्ट इज एडेड. एंड फाइनली द आर्ट्स. तो आर्ट्स में तो लिटरेचर वाले बच्चे जिनको यूपीएससी एमपीएससी का विजन है, लिटरेचर में कुछ करना है, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, दे वांट टू गो इन मास कम्युनिकेशन, those students can opt for arts. Okay, so this is the thing. So because I cannot walk through in depth, but I will just walk through this multiple options in small sense. अभी हम लोग आते हैं कि दूसरे सेक्शन पे कि पॉलिटेक्निक क्या होता है. पॉलिटेक्निक में किसको जाना चाहिए? पहले से ही आपने अपना माइंडसेट कर दिया है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है
और वो भी मुझे मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है, वो तो मुझे सिविल इंजीनियर ही बनना है, वो तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियरिंग का लेवल जिनको चाहिए ना, instead of again going in this 11th 12th then opting for entrance exam, वापस entrance exam दो, उसको क्लियर करो, इतने कंपटीशन में जाओ। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो गो फॉर 3 years डिप्लोमा, लेकिन यस बहुत एफर्ट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपको 3rd ईयर में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको डायरेक्टली 2nd ईयर डिग्री में एडमिशन मिलेगा, और आजकल तो मिल जाता है एडमिशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से ऑलरेडी सीट्स वेकेंट रहते हैं कॉलेजेस में, एंड देयरफॉर यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि यू विल गेट एडमिशन डायरेक्टली इन 2nd ईयर इंजीनियरिंग। तो ये जो बीच का जो एंट्रेंस एग्जाम का पाथ है वो स्किप हो जाता है। तो ऐसे जो मल्टीपल ऑप्शंस है पॉलिटेक्निक के, आपने अगर आपका माइंडसेट फिक्स कर लिया है तो और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। वो एक पर्टिकुलर चीज जो यूनिक चीज है आपने आइडेंटिफाई की है उसके ऊपर ही फोकस करो, उसका ही एजुकेशन आप ले लो। नेक्स्ट इज पैरामेडिकल ऑप्शंस। मेडिकल में जाने की इच्छा बहुत सारे लोगों को होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कुछ डिप्लोमा करके भी हम लोग अगर वो करियर परस्यू कर सकते हैं तो देर आर 3 years डिप्लोमा कोर्सेज इन पैरामेडिकल। You can opt for that like diploma in ophthalmic technology, diploma in medical laboratory technology, health inspector, diploma in ophthalmic assistance, sanitary expense, and there are many other options also in paramedical. So if you have that quotient और आपका अगर liking वैसे है तो आप you can opt for this. अभी एक important aspect पे मैं आ रही हूँ, that is ITI. Now what is ITI? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने ये कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। देखो सारे बच्चे ये थ्योरी में अच्छे नहीं होते, दे कैन ओनली लर्न प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैं डीप आने वाली हूँ आगे के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे हम लोग लॉजिकल जो काउंसलिंग है वो सीखेंगे। लेकिन इसमें कुछ बच्चों का ग्रास्पिंग का एबिलिटी नहीं रहता कि जिसमें वो थ्योरी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़े और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, तो वहां पे ही उनका लो हो जाता है, परसेंटेज लो हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस फिर रहते नहीं है ये कंपटीशन में। तो अननेसेसरी वापस पेरेंट को भी ये अच्छा डिसीजन लेना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर कुछ प्रैक्टिकल एरिया में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो दिस इज लाइक ऑल्सो इंजीनियरिंग। ओनली थिंग इज दैट योर ऑल एक्सपोजर विल बी गिवन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग विल बी गिवन, और इसमें भी आगे जाके ITI को कनेक्टेड डिग्रीज है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ये 2 साल का ही होता है, जैसे आप 11th 12th करते हो उसी के इक्विवेलेंट है, और फिर आगे आप फिर डिग्री कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। सो हियर यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर, मैकेनिकल एंड नंबर ऑफ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वेल्डिंग, कुकरी, different types of sectors are provided in ITI also. तो ITI करोगे तो टेक्निकल स्किल्स में आप बहुत स्ट्रांग बनोगे, और अगर आप प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन हो, परसेंटेज इतने नहीं ला पाते हो, तो बेटर यू कैन चूज दिस ऑप्शन। नेक्स्ट, अदर कोर्सेज में क्या आता है? तो अदर कोर्सेज में यहाँ पे फिर डेफिनेटली मैंने जो हॉबी करके बोला था, तो हॉबी को भी धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ता है, और ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ये हॉबी मेरी इतनी अच्छी हो सकती है कि वो कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करे। इसके लिए ये स्किल एक्वायर करते रहने चाहिए हमारे हॉबी के टूवर्ड्स। लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी के कुछ कोर्सेज करो, फैशन डिजाइनिंग के करो, ब्यूटी कॉस्मेटिक के करो, ज्वेलरी डिजाइनिंग के करो, ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो आपका टैलेंट्स, और वैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी आप कर सकते हो। देन कम्स शॉर्ट टर्म कोर्स। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में क्या है कि इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग ये डिजिटल एरा में जर्नी कर रहे हैं, तो ये जर्नी को अगर हमें स्मूदन करना है तो एक साथ सारी चीजें नहीं सीख सकते। तो अभी किसका जरूरत है? देखो कॉमन जो चीजें है ना सबके लिए, एक तो आजकल आप लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही से लोग पहचानते हैं आपको। तो सबको मालूम है कि यूट्यूब कैसे यूज किया जाता है, फेसबुक, सोशल मीडिया कैसे यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे बस हम टाइम पास करते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट,
थोड़ा सा टाइम हमें पर्सनल ब्रांडिंग करने पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके रिलेटेड जो भी टूल्स है उसको भी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, ताकि हम हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस धीरे 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 बिल्ड कर सके। जब तक हम ये एजुकेशन का जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस भी बिल्ड हो रहा है। तो दैट विल बी द ऑसम थिंग इन दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फेज, क्योंकि अभी जो हम लोग गुजर रहे हैं ना, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी को स्मूथन करने के लिए पर्सनल ब्रांडिंग इज मस्ट, नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया इज मस्ट, मिनिमम नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज मस्ट। एंड अगर आप बहुत अच्छे राइटर हो तो वो स्किल को मिनिमम लेवल के, मीडियम लेवल के भी राइटर हो, आपके स्किल सेट्स है अगर लिटरेचर वाले, तो आपको ब्लॉग तो बनाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर काम करोगे तो उसको और थोड़ा शार्पन करके आप अच्छा कर सकते हो। ऑल दीज आर कनेक्टेड, तो ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव। ग्राफिक डिजाइनिंग का छोटे मोटे टूल्स आते हैं, उससे भी बहुत क्रिएटिव ग्राफिक्स हम बना सकते हैं, लेकिन उसका सबका नॉलेज होना जरूरी है। तो आपका कॉलेज का एकेडमिक का चूज जब करियर पाथ करोगे, उसके साथ ये स्किल धीरे धीरे एक्वायर करो। 2 टाइम में ज्यादा वक्त मिलता है हमें, एक तो 10th के बाद और उसके 12th के बाद। उसके बाद जिंदगी में वक्त ही नहीं होता, बस हम लोग भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं। और उसकी वजह से फिर हम लोग को ये चीजें करने के लिए भी टाइम बहुत कंस्ट्रेंट होता है। तो मिनिमम स्किल एक्वायर करके रखो, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो स्किल का जमाना है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो यू आर नोवेयर। तो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन विल नॉट एड वैल्यू इन योर करियर, रिमेंबर दैट। सो पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मेरा एक स्पेशल सेशन होने वाला है। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन वेबिनार, आई विल गिव यू द शेड्यूल। तो तभी आप वो अटेंड करना कि वो जर्नी कैसे होता है, कैसे जाना चाहिए। ओनली वी विल टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। नेक्स्ट इज MSCIT। कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर लोग जाना चाहते हैं या बेसिक स्किल्स भी एक्वायर करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव करके कुछ करिकुलम लोगों के लिए तैयार किए। उसमें से एक है MSCIT। तो MSCIT इज महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। और एक GCC टाइपिंग का जो आता है। तो ये सारी स्किल्स आपको एक्वायर करके रखने चाहिए। उसके साथ साथ आप अकाउंट्स में जाना चाहते हो, टैली की स्किल है, IT प्रोफेशनल हो, वेब डिजाइनिंग के स्किल है, ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेस और बहुत सारे n नंबर ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, n नंबर ऑफ कोर्सेस आर देयर। आपको कौन सा यूजफुल है वो चूज करके ये स्किल्स आपको एक्वायर करके रखनी चाहिए। तो ये हो गया आप जब इंटरमीडिएट में हो तब, मतलब 11th 12th का जर्नी। तो अभी हम देखते हैं कि आफ्टर इंटरमीडिएट क्या क्या ऑप्शंस आपको आते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम 12th के बाद कौन से देने पड़ते हैं। आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE एंड JEE मेंस एंड JEE एडवांस आपको देना पड़ता है। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का एग्जाम रहता है, एम्स का। देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर, अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप एम्स का एग्जाम दे सकते हो, नीट का एग्जाम दे सकते हो। बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट उसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। देन आपको ये मालूम है कि लॉ जो अभी जो करियर है, तो हम लोग को पता है कि BA LLB करो, फिर LLM करो, या तो फिर कॉमर्स के बाद फिर हम लोग LLB करो। लेकिन सिर्फ वो जो नॉर्मल लॉयर्स होते हैं वो नहीं, आजकल के ट्रेंड में कॉर्पोरेट लॉ को भी बहुत वैल्यू एड हो गया है। और बहुत सारे कंप्लायंसेस है कॉर्पोरेट के, जो कॉर्पोरेट लॉ से होते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सबको पता नहीं है। और उसके लिए भी एक एंट्रेंस देनी पड़ती है, दैट इज CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दैट इज नोन एज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके लिए अगर जो भी लॉ को जाना चाहते हैं तो लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और यू शुड हैव दो स्किल्स। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो ही आप ऑप्ट कर सकते हो। और इसमें अगर क्लैट क्रैक करके टॉप 20 स्कूल्स में अगर आपने एडमिशन पा लिया, तो देर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड दिस इज ऑल्सो लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, ओके, इन कमिंग डेज। देन CET, यस डेफिनेटली आपको मल्टीपल CETs देने पड़ते हैं, 12 के बाद भी CETs देने पड़ते हैं। और बाकी के इंडियन मरीन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी CET जो जून में होता है, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो आगे के स्टडीज के लिए। और अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो फिर डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर NDA, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ये NDA का एग्जाम होता है। एंड यू आर अ विजुअल पर्सन, आपको आर्किटेक्ट फील्ड में जाना है तो आप नाटा का एग्जाम भी दे सकते हो, तो ये सारे हैं मल्टीपल ऑप्शन, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या होती है उसका एक जिस्ट में दे रही हूँ।
स्पेसिफिकली बहुत अगर क्वेश्चंस हो गए तो आप लेटर ऑन मुझे पूछ सकते हो। तो हमने देखा कि इंटरमीडिएट स्टडीज में क्या आता है, डिप्लोमा में क्या आता है, पैरामेडिकल में क्या आता है, आईटीआई में क्या आता है, और इसके साथ साथ के जर्नी में आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे कैसे फोकस करना चाहिए सो दैट यू विल एक्वायर अप्रोप्रिएट स्किल्स। और आफ्टर इंटरमीडिएट में क्या होता है, और डिग्री में अभी हम लोग देखेंगे कि एक बार आपने इंटरमीडिएट भी क्रॉस कर लिया तो फिर एक तो आता है एंट्रेंस एग्जाम के साथ आपका डिग्री चूज करो, या तो फिर डिग्री में कौन से ऑप्शंस है। तो डिग्री में भी आप फिर मल्टीपल चीजों में जा सकते हो। अगर आप बीए सिलेक्ट करोगे तो फिर आर्ट्स में अगर जाना चाहते हो तो आप मल्टीपल फील्ड्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स, लाइब्रेरी साइंस, फाइन आर्ट्स। तो इसमें भी बहुत सारे अगेन मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वैसे ही बीएससी में भी, बीएससी में यू कैन ऑप्ट फॉर पीसीएम और यू कैन यूज बायोकेमिस्ट्री, इसमें भी आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी इन आईटी कर सकते हो, अप्लाइड मैथ्स कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर सकते हो। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। बीकॉम में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मैंने बोला कि इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं अगर आप मैथ्स रखोगे तो 11th-12th में। अगर मैथ्स है तो ही कुछ ऑप्शंस आपको, जैसे बीसीए ऑप्शन, बैफ ऑप्शन, बीएमएस ऑप्शन, ये सारे अगर मैथ्स सब्जेक्ट आप रखोगे तो ही आप इलिजिबल हो, नहीं तो आपको प्लेन बीकॉम के लिए जाना पड़ेगा और कुछ जहाँ पे मैथ्स नहीं लगता है वो फील्ड्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन आप डिग्री कोर्सेज के साथ ही चालू कर सकते हो। जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको डेफिनेटली सीपीटी देना ही पड़ेगा, आईपीसीसी देना पड़ेगा। वो लैडर क्लियर किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हो, तो उसका जर्नी भी आप आपके डिग्री कोर्स के साथ साथ शुरू कर सकते हो। यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, देन आल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अभी मेडिकल में कौन से ऑप्शंस हैं? तो मेडिकल में अलाइड हेल्थ साइंसेस और मेडिसिन में अगर जाना है आपको तो डेफिनेटली इट विल टेक 5 years एंड उसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा। पैरामेडिकल के ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन पैरामेडिकल दैट आल्सो यू कैन ऑप्ट। इंजीनियरिंग में जाना है, ऑलरेडी इंजीनियरिंग के स्ट्रीम्स हमने देख लिए थे, तो दिस इज द डिग्री। तो पॉलिटेक्निक में अगर आप एंटर कर रहे हो तो 3 साल का अगर डिप्लोमा करोगे तो वही स्ट्रीम में आपको सेकेंड ईयर डिग्री को एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप 11th-12th करके सीटी देके जा रहे हो तो आपको अगेन 4 years का स्टडी करना पड़ेगा इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो ऑल बेसिक्स यू नो अबाउट दिस। and anybody who just want to go in teaching specifically, especially in teaching profession, तो उनके लिए भी आपको जो एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो डीएड यू नीड टू कंप्लीट द 2 year प्रोग्राम ऑफ डीएड अगर आपको प्राइमरी स्कूल टीचर बनना है। देन यूडीपीएड विच इज फॉर पेट टीचर, अगर आपको पेट टीचर बनना है तो वो भी 2 साल का प्रोग्राम है विच यू कैन ऑप्ट फॉर। देन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का भी एक कोर्स है, वहां पे वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट और सेट, अगर स्टेट लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है सेट और नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है नेट, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर these professions in teaching। तो आप वहां पे जा सकते हो। एंड अदर्स में तो देर आर अगेन द नंबर ऑफ ऑप्शंस। डिप्लोमा कोर्सेज है, डिजाइनिंग में है, फिल्म मेकिंग में है, मैनेजमेंट में है। आजकल तो एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। थोड़ा सा नॉलेज एक्सप्लोर करने की जरूरत है, तो आपको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है तो ये भी कुछ ऑप्शंस आप ऑप्ट कर सकते हो जो आप 12th के बाद सीख कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए भी जा सकते हो एंड देन यू कैन परस्यू योर पैशन एंड यू कैन कन्वर्ट दैट पैशन इनटू करियर। सो दिस इज ऑल अबाउट आफ्टर इंटरमीडिएट। और अभी मैंने आप सब लोग को बहुत कंफ्यूज कर दिया है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं डेफिनेटली मुझे क्या बनना है। सो इज एवरीवन हैज any you have got clarity of number of options till time whatever I have explained अभी तक जो मैंने explain किया? तो have you got the clarity? Just type clarity in the chat box. Clear in the chat box. You can type clear in the chat box. Very good. So अभी भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम लोग को खुद को ही पता नहीं है कि सच में हम लोग को कैसे ऑप्ट करना चाहते हैं।
अभी हम लोग थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट लेने वाले हैं, यहाँ पे पेरेंट्स भी कुछ अटेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट भी अटेंड कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहूंगी कि क्या होता है। ये जर्नी तो हम लोग बस सुन रहे हैं कि करियर का ये ऑप्शन है, हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। क्यों स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशंस क्यों आ रहे हैं? आजकल हम लोग न्यूज में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं बच्चे, बहुत सारे पेरेंट भी बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं। एक सिंपल सी बात बोलने पे ऐसा क्यों हो रहा है? दे आर जस्ट कंफ्यूज हाउ टू हैंडल देयर किड्स। इफ यू विल लुक इनटू द स्टैटिस्टिक, तो अभी आप देखोगे कि 14,000 प्लस स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी ईयर। अगर ये स्टैटिस्टिकल आप गूगल पे भी टाइप करोगे ना, यू विल गेट दिस स्टैटिस्टिक्स। और रिसर्च ने ये प्रूव किया गया है कि अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर स्ट्रेस। हमेशा वो स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो बहुत सारा दिक्कत रहता है कि सच में मैं वैसे अचीव करूंगा, क्या फील्ड सिलेक्ट करूं, फिर इतने सारे स्किल्स मुझे आएंगे क्या, हाउ आई विल कोप अप। तो ये जो सोच विचार है उसमें दे आर जस्ट एक्चुअली बिकमिंग वेरी स्ट्रेसफुल। और उसमें से पेरेंट भी बोलते रहते हैं कि यस डेफिनेटली कि मेरे बच्चे को कुछ करना चाहिए, इतना कंपटीशन। और एक पेरेंट का क्या होता है कि हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारा जिंदगी का पैटर्न वैसा ही था, हम लोग जो जमाने से आए हैं, तो वहां पे बहुत स्ट्रगल था। तो वी जस्ट कीप ऑन टेलिंग स्टूडेंट दैट कितना स्ट्रगल था। तो अभी ये समझने की जरूरत है कि वो जमाना ही स्ट्रगल का था और इनको सब कुछ मिल गया, एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द की। अगर उनपे वो ऐसा बीतता है तो वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो डेफिनेटली ये रिसर्च अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेस क्यों क्रिएट होता है, तो मैक्सिमम केसेस में ये स्ट्रेस पेरेंट की वजह से क्रिएट होता है। तो ये नहीं बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग। वो उनके सिचुएशन में वो बराबर रहते कि वो चाहते हैं कि अपना बच्चा अच्छा हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे का बुरा हो। उनको कंसर्न रहता है, लेकिन वो कंसर्न ही स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत हमें बैलेंसिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अभी तक 35,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं इंस्टीट्यूट से, और बहुत बच्चों को मैंने काउंसलिंग किया है। और ये जो स्टूडेंट का काउंसलिंग और गाइडेंस हम लोग जो करते हैं ना, तो आई फॉलो वन टेक्निक। इसके लिए एक तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेरा जो बच्चा है ना, ही इज यूनिक। अभी काफी सारे पेरेंट मैच्योर्ड भी है, एजुकेटेड है, बहुत एक्सप्लोर हो रहा है। हम लोग ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी बहुत अभी आजकल सुनते हैं, और उसकी वजह से भी वो जो एटीट्यूड है वो पेरेंट का, वो भी चेंज हो रहा है, स्टूडेंट का भी चेंज हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको अगर आपके बच्चे के बारे में अच्छे से जानना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक बच्चा यूनिक कैसे होता है, हर एक में अलग एबिलिटी कैसे होता है। अगर आप देखोगे तो कोई भी जो बच्चा है तो वो यूनिक ब्लेंड होता है। कैसे कि ईच पर्सन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ डायनामिक इंटेलिजेंस। तो डायनामिकली वो एक्वायर करते हैं, और स्लोली स्टेडीली दैट इंटेलिजेंस विल ग्रो, इट विल एक्सपांड, एंड इट विल कीप ऑन डेवलपिंग थ्रू आउट द लाइफ। तो इसके लिए तो हम बोलते हैं कि लर्निंग का जर्नी ना कभी एंड नहीं होता जिंदगी में। ट्रू और फॉल्स? True or false? Just type in chat box. Everyone is with me? Just type true or false in chat box. Yes. तो हमें हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। अगर एक अच्छे लेवल का अगर हमें करियर ऑप्ट करना है, तो वी शुड बी ऑलवेज अ लर्नर एंड लिसनर। दिस टू स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अपना बच्चा ऑथर कौन बनेगा, क्योंकि जो विजुअल वाले लोग होते हैं, जो डीप थिंकर्स होते हैं ना, वो ऑथर होते हैं अच्छे। फिर वो पोएट भी होते हैं। किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो फिर वो एंकर्स होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, एक्टर होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन है। लेकिन मेरे बच्चे में वो यूनिक क्वालिटी किधर जाके वो सेट होगा? वो ऑथर बनेगा, वो पोएट बनेगा, वो एंकर बनेगा, वो टाइपिस्ट बनने में भी कुछ बुरा ही नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक। उसको एक पर्पस के लिए इधर लाया गया है। अभी वो टाइपिस्ट अगर कोई भी नहीं बनेगा तो टाइपिंग कौन करेगा? सो एवरीवन्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी मिस आउट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अपने चाइल्ड को आइडेंटिफाई करते वक्त ये ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि इसके लिए क्या एबिलिटीज लगती है, और चाइल्ड को खुद को भी, बच्चों को भी खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए
कि ये जो सारे प्रोफेशंस है इसमें सच में मेरा एबिलिटी क्या है, मैं कहाँ पे सेट हो सकता हूँ, कहाँ पे मैं मेरे टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, so that it will get converted into career, my passion should get converted into career. दूसरा एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्रॉम जेनेटिक्स। तो हमारे जो जेनेटिक्स है उससे ही एक्चुअली हमें कुछ टैलेंट्स मिलते हैं। तो हमारे मम्मी पापा सपोज अकाउंटेंट है, प्रोग्रामर है, सीए है, तो हमें कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में रहते हैं कि जेनेटिक्स को हटके भी कुछ टैलेंट्स बच्चे में आ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी बच्चे को ये इतना सारा बिजनेस अगर खड़ा कर दिया है तो बच्चे ने संभालना चाहिए, लेकिन उसका एक पर्सनालिटी एक अलग तरीके में अगर डाइवर्स हो गया है तो ही विल नॉट बी एबल टू मैनेज दोज थिंग्स, बिकॉज उसका इनेट पोटेंशियल वैसा नहीं है। और इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको एंजाइटी से दूर रहना है ना तो एक्सेप्ट द पर्सन एज ही इज। क्यों? क्योंकि उसमें एक यूनिक एबिलिटीज है, वो कुछ और करना चाहता है, तो जबरदस्ती का हम लोग करवा नहीं सकते। लेकिन बच्चों को भी साइमल्टेनियसली ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका जेनेटिक्स से कुछ इनहेरिट हो रहा है, आपके पास आ रहा है, तो बहुत अच्छा यूज उसका कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस पीपल आपको घर में ही मिलते हैं, सारे रिसोर्सेज डिस्कस करने के लिए भी घर में ही मिलते हैं, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट जो है वो इनहेरिट होके आया है। तो देयर बाय यू कैन जस्ट थिंक इन राइट डायरेक्शन कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ्स हेल्प्स देम बी सेल्फ एडवोकेट्स इन देयर लर्निंग। तो खुद के बारे में जब पूरा पूरा ज्ञान होता है ना, मेरे पास ये टैलेंट है और इसको कैसे नर्चर करना चाहिए, जैसे ऑलरेडी मैंने पहले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है, तो फिर ये राइट डायरेक्शन में लेके जाता है। और अगर आप देखोगे तो हर एक बच्चे में ये 8 इंटेलिजेंस होते हैं। तो कुछ बच्चे वर्ड स्मार्ट होंगे, कुछ बच्चे नंबर स्मार्ट होंगे, कुछ बच्चे बॉडी स्मार्ट होंगे, कुछ बच्चे पिक्चर स्मार्ट होंगे, कुछ बच्चे म्यूजिक स्मार्ट होंगे, कुछ बच्चे पीपल स्मार्ट होंगे, तो कुछ बच्चे सेल्फ स्मार्ट होंगे, क्योंकि उनको खुद को डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से आता है और वो अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों में अगर अपने को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे में कौन सी यूनिक एबिलिटीज है और वो यूनिक एबिलिटीज के टूवर्ड्स कैसे हम उसको करियर के टूवर्ड्स अलाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट नोइंग अबाउट ओनली द करियर ऑप्शंस, इट्स अबाउट नोइंग योर इनेट पोटेंशियल एंड योर मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल, कि ये 8 इंटेलिजेंस जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसमें आप कहाँ पे कौन से दायरे में बैठते हो और उसमें से फिर कौन से प्रोफेशन में हम आगे जा सकते हैं। ये हम लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, इसके लिए हम लोग को प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट अगर आप इंटरेस्टिंग बात सीखेंगे तो एक्चुअली हमारे बिजी शेड्यूल में पेरेंट्स भी बिजी है, जिंदगी अभी सबका बिजी हो गया है, मॉर्निंग से इवनिंग तक हम लोग को बहुत सारा मतलब हाउस वर्क है, ऑफिस वर्क है, बहुत सारा हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो इतना ध्यान देने को वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को 3 अलग अलग स्टाइल्स होती है लर्निंग की भी। हम लोग एक टिपिकल मेथड में अगर बच्चे को बोलेंगे कि चलो बैठो रूम में बंद हो जाओ और बस पढ़ते रहो, तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हर एक का एक अलग लेवल का एबिलिटी होता है। कोई विजुअल लर्नर होता है, तो देख के समझ के और सुन के उसको समझ आती है। तो कुछ जो पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, वो सारे विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग अकाउंट्स वाले लोग होते हैं वो किनेस्टिक एंड विजुअल लर्नर्स होते हैं, क्योंकि उनको देखना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करने पड़ते हैं और फिर लॉजिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो हमारा बच्चे का सच में लर्निंग स्टाइल कैसा है, हैव यू ऑब्जर्व्ड इट? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे? और बच्चों को खुद को भी अभी वो मैच्योरिटी के स्टेज में आ गया है, बच्चे अभी 15+ हो गए, तो वो मैच्योरिटी के स्टेज में बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा कैपेबिलिटी किधर मैं ज्यादा ग्रास्प करता हूँ, कौन से वे से मैं ज्यादा ग्रास्प करता हूँ, तो वही मैकेनिज्म उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हम ये जो कोर चीजें, हम लोग बस मल्टीपल करियर ऑप्शंस देखते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहते हैं। देखो कि सारे पैरामीटर्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, ये सारे डॉट्स बराबर इंटरलिंक्ड है, उसको जब कनेक्ट करोगे ना तो आप करियर का राइट पाथ सिलेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज यू विल फेस।
तो ऑलरेडी आई एम अ DMIT काउंसलर, इसके लिए मैं ये सब जानती हूँ कि इंटेलिजेंस का कैसे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होता है। ये जो DMIT है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इट हैज बीन डेवलप्ड इन 1983 बाय डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर, जो प्रोफेसर है एजुकेशन के एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने ये समझा कि आजकल बहुत सारा ट्रेंड है कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होता है, एप्टीट्यूड टेस्टिंग होता है, फिर कुछ पैरामीटर आते हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन बेस्ड पैरामीटर है। वो एक क्या है, तो क्वेश्चन बेस्ड पैरामीटर है। अभी क्वेश्चन बेस्ड अगर पैरामीटर है, तो आप सोचो कि 15 इयर्स में आपका एक्सपीरियंस 15 इयर्स का ही है। तो अगर वही क्वेश्चनर आपको 15 साल के बाद और दिया जाए एट द एज 30, तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। एट द एज 15 उसका आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने जितना एक्सपीरियंस हमने गेन किया उतना ही हमारा रिफ्लेक्ट होगा, उसके आगे हमें पता नहीं है। और वही अगर और 15 साल के बाद पूछेंगे तो देयर विल बी डिफरेंट पैरामीटर। तो उसके ऊपर अगर हम लोग डिसीजन लेने गए, तो जो जेनेटिक्स से डिराइव हुआ है, जो ऑलरेडी हमारा इनेट पोटेंशियल है, उसका प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिलता। इट गिव्स जस्ट 10% एक्यूरेसी। तो उन्होंने बोला कि साइंटिफिक वे से, सो आई कॉल दिस एज अ लॉजिकल काउंसलिंग एंड दिस एप्टीट्यूड या साइकोमेट्रिक इज अ करियर काउंसलिंग। तो करियर काउंसलिंग से ज्यादा बहुत सारे ऑप्शन देखो, फिर ये सूट होता है क्या, ये सूट होता है क्या, ये नहीं होता है, फिर चलो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक कोर्स करो। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है तो वो जाके वो करने वाला नहीं है, आप कितना भी फोर्स करो। तो पहले कोर में जाओ कि उसको क्या अच्छा लगता है, वही कोर्सेस वो करेगा। और जो टैलेंट ऑलरेडी उसमें नहीं है उसको छोड़ दो। जो टैलेंट्स ऑलरेडी उसमें है, जो इंटेलिजेंस ऑलरेडी उसको उसमें है, उसको कंसीडर करते हुए हम लोग कैसे नर्चर कर सकते हैं, हाउ वी कैन नर्चर इट, जस्ट कंसीडर दोज इंटेलिजेंस और उसके ऊपर काम करो, तो वो और एक्सप्लोर हो जाएंगे। जो जिंदगी में जरूरी चीजें रहती है वो तो डेफिनेटली वर्क करके करना ही चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत मायने नहीं रखता करियर पैरामीटर से, तो अननेसेसरी उसके ऊपर स्ट्रेच करके, ताकि वो आपको अच्छा लग रहा है करके मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में भी जाके वो स्विच ही होने वाला है। बिकॉज आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, तो ये ट्विस्ट होते रहता है एंड देन द प्रोफेशंस कीप ऑन चेंजिंग। अभी का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो हर एक बच्चे स्विच करते रहते हैं ये फील्ड में से वो फील्ड में, क्योंकि पहले ही प्रॉपर करियर पाथ उसके यूनिक टैलेंट के टुवर्ड्स अलाइन नहीं किया है। तो आई विल जस्ट नॉट शो यू द मल्टीपल ऑप्शंस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप अगर देखोगे कि सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्सिटी इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू एग्री विथ मी, येस और नो? एग्री, टाइप एग्री डिसएग्री इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप एग्री डिसएग्री इन चैट बॉक्स। यस, सो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हमें लॉजिकल काउंसलिंग के टुवर्ड्स अगर स्विच करना है, तो लॉजिकल काउंसलिंग में एक तो हम लोग को एक मेथड होती है जहां पे हम लोग एक्चुअली ये जो फिंगरप्रिंट्स आपको मालूम है ना, वो होते हैं, वो फिंगरप्रिंट आधार में भी वही फिंगरप्रिंट लेते हैं। आपको अगर बचपन में एक रिपोर्ट करोगे, फिंगरप्रिंट दोगे, और आप अगर एट द एज 60 भी वो फिंगरप्रिंट लोगे, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अभी आप बोलोगे कि ये कौन सा साइंस है, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी साइंस, इट्स नॉट। आपके ब्रेन के ऊपर है पूरा सब। आपका ब्रेन कैसे बना है, उसमें जो 10 पार्टीशंस है, उसमें जो 8 इंटेलिजेंस है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस आप में कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो न्यूरॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, उसका पूरा रिफ्लेक्शन हमारे फिंगरप्रिंट्स पे आता है। और वो फिंगरप्रिंट से पूरा हमारा ब्रेन का जो मैप है वो हमें मिल जाता है। एंड देन हम लोग वो डिवाइड करते हैं कि 8 इंटेलिजेंस जो है, टोटल 10 है, लेकिन 2-2 का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। तो ये 8 इंटेलिजेंस को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोग को समझता है कि हर एक बच्चा कैसे यूनिक है, उसका एक्चुअली लर्निंग स्टाइल कौन सा है, उसका बिहेवियरल स्टाइल कैसा है, उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। ये सारा रिफ्लेक्शन पूरा हमारे माइंड गेम है और कुछ नहीं। तो ब्रेन को स्टडी करके ही हम लोग को लॉजिकल काउंसलिंग में जाना पड़ता है मुझे, एंड आई बिलीव इन दैट बिकॉज इट रियली गिव्स द एक्यूरेट रिजल्ट। क्योंकि वैसे तो मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, आप वैसे भी मुझे क्वेश्चंस करोगे तो मैं तो आंसर दूंगी,
क्योंकि वो तो जिंदगी से, एक्सपीरियंस से हम सीख ही जाते हैं, लेकिन जो परफेक्शन है वो हम लोग परफेक्टली मैपिंग कर सकते हैं। तो हर एक चाइल्ड का इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई करो, और वो इनबॉर्न टैलेंट आइडेंटिफाई करने में ही हम लोग ये जो अभी का कंपटीशन चल रहा है उसमें भूल जाते हैं। और टीचिंग मेथड भी प्रॉपर यूज करनी चाहिए, रॉन्ग टीचिंग मेथड से उतने रिजल्ट नहीं आते। इनबॉर्न टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करके अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो एवरीवन विल बी हैप्पी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अभी देखो कि यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ये ना क्या करता है कि लॉजिकली अगर हम लोग सारा मैचिंग करेंगे ना, मैपिंग करेंगे ना, तो ये पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा करता है। हाउ इट ग्रोज द रिलेशनशिप, क्योंकि ऑलरेडी आपके इनबॉर्न टैलेंट्स मालूम है, बच्चे का बिहेवियरल स्टाइल मालूम है, उसका लर्निंग स्टाइल मालूम है, तो आप अलग से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। यू विल नॉट एक्सपेक्ट एनी एडिशनल थिंग्स, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो कर रहा है वो बराबर कर रहा है। लेकिन अगर आप जैसे ही वो पर्सन का एबिलिटी नहीं है एक्सपेक्टेशन स्टार्ट करते हो तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को पेरेंट का नहीं सुनना चाहिए, पेरेंट के साथ डिस्कस करो, अपने पॉइंट्स को स्मूथली ले लो। अभी जो भी आपके जो डाउट्स है ना, जस्ट आप यू टाइप इट इन चैट बॉक्स, और जो क्वेश्चन आंसर का टाइम है तब मैं आंसर करूंगी सबको, तो जस्ट टाइप ऑल द डाउट्स इन चैट बॉक्स। तो आपका चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल अंडरस्टैंड करो, पेरेंट के एक्सपेक्टेशन जो है वो चाइल्ड के साथ सच में जा सकते हैं क्या, चाइल्ड में वो पोटेंशियल है क्या, ये समझने की कोशिश करो। और फिर हाँ, अपने चाइल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिस्कवर करो। तो ये जो सारे इंटेलिजेंस है उसको कंसीडर करते हुए गोल सेटिंग करना चाहिए। हमारे बच्चे में क्या टैलेंट्स है। अभी मैं एक इंटरेस्टिंग स्लाइड बता रही हूँ कि हमारा जो गोल है ना वो किसके टुवर्ड जाता है, या तो हम लोग को जॉब करनी है, या तो हायर स्टडीज करनी है, या बिजनेस करना है। जो भी है वो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचोगे आप, अगर आप ये अप्रोप्रिएटली समझ लो कि मेरे इनबॉर्न टैलेंट्स क्या है, मेरा आईक्यू लेवल कौन से फील्ड में जाता है, मैं कैसे टाइप का लर्नर हूं, ये अगर आप बराबर करोगे तो आप गोल सेट कर पाओगे। एंड रिमेम्बर एज आई टोल्ड यू, हम लोग को ना इंट्यूशंस आते हैं पहले ही, सपने तो सबको दिखते हैं, एवरीबडी इज एबल टू सी द ड्रीम्स, इजंट इट? यस, लेकिन रिमेम्बर स्टूडेंट्स, दीज ड्रीम्स आर हिंट्स ऑफ योर फ्यूचर। These dreams are hint of your future। किसी को भी एरे गेरे को कैसे भी सपने नहीं आते हैं, सपने वही आते हैं जो हमारा डेस्टिनी होता है। ड्रीम्स आर योर डेस्टिनी, लेकिन वो ऐसे ही सक्सेसफुल डेस्टिनी में नहीं बदलते हैं। तो वो ड्रीम्स के लिए बैकग्राउंड में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज वी रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट, टैगलाइन, डेयर टू ड्रीम बिग एंड एक्ट टू अचीव। सपने देखना तो अच्छा ही है, लेकिन आपकी इनेट पोटेंशियल में वो सपनों के लिए कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वंस यू डिसाइड ऑन दैट, तो फिर आप अलाइन हो जाते हो कि डेफिनेटली यू विल रीच टू योर पाथ। द फ्यूचर यू सी इज यू फ्यूचर यू गेट। इसके लिए हम लोग स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हैं तो वही देखते हैं कि आप जो सोच रहे हो ना वही आपको रिटर्न आता है, क्योंकि दीज आर द इंट्यूशंस ऑलरेडी गिवन टू अस कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करने आए। तो उसी के टुवर्ड्स आपका पाथ जो है वो अलाइन करो, और अलाइन करके जो भी आपको स्किल्स एक्वायर करने हैं उसके ऊपर फोकस करो। आपको जो अच्छा लगता है वो और अच्छा करने की कोशिश करो, एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन अदर्स लाइफ। तो ऑटोमेटिकली मनी विल फॉलो यू। तो आपको ये जो उल्टा हम लोग रिवर्स फॉर्मूला यूज करते हैं ना, उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दैट पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, आप आगे रहने चाहिए, एंड मनी शुड फॉलो यू बिकॉज यू आर कॉन्ट्रीब्यूटर। यू शुड बिकम अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एंड लाइक दैट यू शुड परस्यू योर ड्रीम्स। हमेशा पैसा कमाना ही गोल नहीं होता। बहुत सारे सोशल वर्कर्स है वो पैसे के लिए काम नहीं करते। बहुत सारे, अभी ये सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के वर्ल्ड में जो मास्टर है, अभी थोड़ा ना वो सोचेगा कि अभी 6 मार के इतना पैसा मिलेगा। इट्स नॉट द थिंग, ही लव्स इट, ही हैज दैट पैशन एंड देयरफॉर ही इज परस्यूइंग हिज पैशन। तो हर एक कोई बंदे को अपने को जीने का एक मकसद जो बोलते हैं ना, वो मिलने के लिए वो ड्रीम्स को बिलीव करके अपने इनेट टैलेंट्स के साथ उसको मैप करके अंडरस्टैंड करके करियर का जर्नी सेट करना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड the last but not the least, this you should commit yourself।
क्योंकि ये करियर साइकिल है ना, डोंट वरी अबाउट इट इज वन सिस्टम. करियर साइकिल इज वन एजुकेशन सिस्टम. वो दो ही डायरेक्शन में जा सकती है, एक तो फैमिली के टुवर्ड्स, एक तो सेल्फ के टुवर्ड्स. अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत मैच्योर्ड हो, इंट्रापर्सनल स्किल बहुत हाई है आपका, तो बहुत मैच्योर्ड हो, आपको मालूम है कि क्या टाइम पे क्या डिसीजन लेना है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने खुद के जिंदगी के डिसीजन सबको डिनाई करके खुद ही लिए थे, क्योंकि वो उनका इंट्यूशन था और उनको मालूम था कि वो टैलेंट मुझ में है, वो एबिलिटी भी मुझ में है. देन डेफिनेटली वो सेल्फ के टुवर्ड्स आप आपका विजन सेट कर सकते हो. और फैमिली कब आता है कि कभी कभी हमारा जो भी टैलेंट्स है, दोज टैलेंट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फैमिली. तो जेनेटिक जो एस्पेक्ट हम में आता है, उसके टुवर्ड्स कभी कभी हमारा करियर पाथ अलाइन होता है. तो जिनको मालूम है कि यस मैं तो पापा पे ही गया हूँ, पापा इतना अच्छा करते तो मैं भी करता हूँ, मॉम मेरी अच्छी करती है तो मैं भी करता हूँ, मेरे ग्रैंडपा ऐसे करते हैं तो मैं भी करता हूँ, अच्छा है वो, तो उनसे एक्सपीरियंस ले लो और नॉलेज को नर्चर करो और उसी में आगे जाओ और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो. अल्टीमेटली कोई भी पाथ से जाओ, हम लोग को सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है. एंड जितना कंट्रीब्यूशन आप अच्छे लेवल का करते हो, उतना पैसा आपके पास ऑटोमेटिक वो प्रोफेशन से आ जाएगा. सेल्फ के टुवर्ड्स भी आपको विजन ही सेट करना है, फैमिली के टुवर्ड जाओगे तो भी आपको विजन सेट करना है. जेनेटिक्स को लेके जाओ या खुद के कुछ जो यूनिक एबिलिटीज है उसको लेके जाओ. तो ये ऐसा करियर साइकिल है. लेकिन बहुत सारे लोगों को ये दोनों भी साइकिल में नहीं होते. अगर आप लोग ये बीच में हो, करियर लाइफ सिस्टम के बीच में हो, तो एक्चुअली आप थोड़े से बहुत ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप आपका करियर गोल बराबर अचीव नहीं कर पाओगे. एंड ऑलवेज देयर विल बी कंफ्यूजन. अगर आपको लगता है कि ऐसा ये सिचुएशन में हो, तो आपको एक्चुअली करियर काउंसलिंग, लॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए. That is my recommendation. Those people who are not able to set their journey, then they should opt for this DMIT testing because it is a proven logical testing. तो उसके लिए जाना अच्छा रहेगा. अगर आप सच में क्लियर हो तो जाने का जरूरत नहीं है, आप आपका सेट कर सकते हो, आप खुद के ऊपर काम कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव अहेड. नो इशू इन दैट. लेकिन कमिटमेंट अल्टीमेटली बहुत जरूरी रहता है. कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं होता, ऊपर ऊपर से काम करने से कुछ नहीं होता. एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. टाइम मैनेजमेंट स्किल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, जो अभी हमारा डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत वेस्ट हो जाता है. तो यू शुड रिमेम्बर दिस. The next important announcement now, I came to an end of seminar, but 5-10 minutes it will take because I will be taking questions. But before that, 2-3 announcement I will do. और भी कुछ insights बच्चों को ऐड करने के लिए कुछ मैं सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट कर रही हूँ इन कमिंग डेज. MSCIT एंड गवर्नमेंट टाइपिंग, उसके ऊपर एक, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये कंपलसरी स्किल्स है और गवर्नमेंट के कोर्सेज है. बहुत सारे लोगों को उसमें पता ही नहीं है. MSCIT मतलब उनको लगता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखना. बट फैक्ट इज दैट कि गवर्नमेंट ने भी अभी के ट्रेंड्स को देखते हुए बहुत सारा ऐड किया है. तो उसके ऊपर के लिए एक सेपरेट वेबिनार मैं कंडक्ट कर रही हूँ 1 जून 2020 में. दोज हु आर इंटरेस्टेड, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो surekhabhosle.com पे जाके. फिर नेक्स्ट है अपहोल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर विथ लॉजिकल काउंसलिंग. DMIT के सेक्शन में और भी कुछ किसी को डाउट्स है, पेरेंट्स को और भी कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, तो ये मेरा सेशन आप 4 जून, दैट इज नेक्स्ट थर्सडे, आप अटेंड कर सकते हो. बिकॉज स्पेशली आई विल जस्ट टॉक अबाउट द DMIT कि ये डर्मोटाग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, क्या पैरामीटर्स कैसे कंसीडर किए जाते हैं. द होल वी विल थिंक ऑन दोज आर फॉर पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड कि सच में उनको जानना है कि इसमें सच में क्या होता है. ये सेम करियर गाइडेंस का सेशन और एक 9 जून को दूसरे लोगों के लिए और लोगों के लिए मैं ले रही हूँ. तो आप भी, आपके नियर डियर वंस उनको लगता है कि यूजफुल होगा, तो आप ये उनको लिंक भी भेज सकते हो. एंड देन एज आई टोल्ड यू कि पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे अलाइन करना चाहिए और हम लोग को हमारा करियर गोल के साथ साथ उसको कैसे मैप करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इन दिस करियर जर्नी. तो उसके ऊपर मैं स्पेशल सेशन ले रही हूँ 11 जून को. दैट ऑल्सो यू पीपल अटेंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज ऑफ आवर ब्लॉग. तो आपको मालूम है कि ऋषि www.rishiblogbuddhi
अपना ब्लॉग है, वहां पे बहुत सारा आर्टिकल्स मिलेगा आपको, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू स्किल्स एंड ऑल अदर ऑप्शंस। तो वो भी आप विजिट करके कुछ एडिशनल अगर आपको डाउट है तो वो आप ज्ञान वहां से ले सकते हो। एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो टू गेट द न्यूज लेटर्स फ्रॉम द ब्लॉग, जैसे नया कोई अगर अपलोड हो जाता है तो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ऋषि कंप्यूटर इज नाउ केम इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। वंस यू सब्सक्राइब आपको एमएस ऑफिस का कोर्स फ्री मिलेगा। तो दोज हु आर हाउसवाइफ या जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और अच्छा नॉलेज गेन करना है, सब लोग ये पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है दोज आर इन अफोर्डेबल कॉस्ट, तो कोई भी सेक्शन के लोग एक्चुअली उसको अफोर्ड कर सकते हैं और अपने स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें आपको पर्सनल असिस्टेंस भी है, जहाँ पे आपका जो ट्रैक है वो रखा जाएगा और आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो जो कॉस्ट हम लोग को सेंटर में जाके बहुत ज्यादा पड़ता है, वो यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको कम पड़ेगा एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। तो एमएस ऑफिस का कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा, तो ये भी आप लिंक दूसरों को भेज सकते हो ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऋषि ऑनलाइन बुद्धि प्लेटफॉर्म। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टाइम के साथ प्ले करते हैं। सो टिल द टाइम वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, हैव यू फाइंड इट यूजफुल? आपको लगा कि ये यूजफुल है, यूजफुल, नॉट यूजफुल? Just type in chat box whether session is useful or not useful. I'm coming to end, but I have one more announcement for you. Don't leave the meeting. So most of the doubts are clear. So देखो, we play with time. तो सचिन तेंदुलकर ने एट द एज 12 उनका गोल सेट किया था। अभी आप लोग बहुत अच्छे से आपका गोल सेट करो, और वही सब बताए 3 इडियट्स में। राजू, फरहान, रांचो, सबको हम जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स ही है, बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल, सो वी लव इट मच। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि यस यस मेरा सोच भी उनसे थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो यस वो मुझे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आता है। और फिर हम लोग बोलते हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है ना ऐसे मत बोलो, पहले एक्सप्लोर करो and then only you make a decision that whether you are interested or not. तो हमेशा हमें कोई भी चीज को सोचते नहीं बैठना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी जिंदगी में शॉर्टकट्स नहीं होते। रिमेम्बर, जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं होते। और जो स्टार्ट करोगे ना उसको कंप्लीट करो, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये स्टार्ट करते हैं फिर आधा रह जाता है, दूसरा स्टार्ट करते हैं फिर आधा रह जाता है, तीसरा स्टार्ट करते हैं फिर आधा रह जाता है। डोंट डू दैट। whatever you will start, you should finish it. That is very important, and then only you can become successful. अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में आ गए हैं। इन बिटवीन आई विल पेस्ट वन फीडबैक फॉर्म ऑल्सो, तो क्वेश्चन आंसर्स भी हमारे चलते रहेंगे और साइमल्टेनियसली आप लोग फीडबैक भी दे दो। तो मैं इधर पेस्ट कर रही हूँ लिंक, ये फॉर्म पे जाके आप आपका फीडबैक अभी रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको मेल भी मिलेगा सारे वेबिनार्स के शेड्यूल्स का, तो फिर वो शेड्यूल को आप फॉलो करके मेरे आगे के भी वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हो। तो अभी आप क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन हो, तो काइंडली टाइप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स एंड आई विल जस्ट स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। We have big career and it helps time to acquire. Once want to do a job, then what should we do? हाँ, सी निखिल असुरी, यू हैव क्वेश्चन कि अगर हमें बहुत बड़ा करियर अचीव करना है और वो करियर गोल तो सेट है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो बीच में क्या करना चाहिए? तो आपका डिसीजन बराबर है, आइडल टाइम वेस्ट मत करो उसको। अगर थोड़ा सा टाइम है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना मत भूलो, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आपको प्रूव करता है जिंदगी में। और अगर आप वो टाइम अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो बहुत ऐसा वक्त चला जाएगा, उसमें इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकली भी, और जो ट्रेंड्स है अभी के मार्केट के उसमें भी। अभी हम कोविड की वजह से ही कितना सारा चेंजेस फेस कर रहे हैं।
तो ऐसे कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। और फिर अगर आप करंट ट्रेंड के हिसाब से खुद को तैयार नहीं रखोगे तो बेनिफिट नहीं होगा। तो यू शुड अपग्रेड, कीप ऑन अपग्रेडिंग, डोंट वेस्ट टाइम एट ऑल। वो आपका करियर पाथ जब भी आना है आते ही जाएगा। आपको उसके टूवर्ड्स का जर्नी चालू रखते रखते स्लोली एंड साइमल्टेनियसली आपको ये वर्क भी करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। Yes, any other questions? Student, just you can ask those questions. And please do fill the feedback form. आपको और भी कुछ टॉपिक सीखने हैं तो वो भी फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हो आप, कि और कौन से टॉपिक्स पे आपको इंसाइट चाहिए. So just follow that link and you can fill the form. And anyone else have any questions, just you can ask here in chat box. How to do career in financial analyst? If you want to become a financial analyst, तो एक तो आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेगी, एडवांस एक्सेल जैसे स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे. देखो आपका ग्रेजुएशन तो आप उसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में कर सकते हो, और बैफ में भी कर सकते हो, या बाद में एमबीए भी ऑप्ट कर सकते हो. लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल प्रोग्राम्स है एनालिस्ट बनने के लिए, वो आपको सीखने चाहिए. एंड स्लोली एंड स्टेडीली देन यू कैन मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल, यू कैन टेक फाइनेंशियल एनालिस्ट एज अ करियर ऑप्शन. यस, फ्रीलांसिंग, जुडित, वेरी गुड क्वेश्चन. और ये फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे इंसाइट्स मैं ऐड करने वाली हूँ इन माय अपकमिंग वेबिनार ऑफ MSCIT. वहां पे एक्चुअली हमारे स्किल्स, फ्रीलांसिंग का ही वर्ल्ड आने वाला है, गिग इकोनॉमी आने वाली है. गिग इकोनॉमी इज इकोनॉमी जहां पे आजकल कोई भी परमानेंट रिसोर्सेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. लेकिन देखो कि कोविड जैसे सिचुएशन आ गया तो इतने सारे लोगों को सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं है, तो जॉब का भी कुछ एश्योरिटी नहीं है. और आजकल के अगर आप बच्चे देखोगे ना, सब तो सबको फ्रीडम चाहिए जिंदगी में. इफ यू वांट टू बी अ फ्री, तो आपके पास इतने अच्छे स्किल होने चाहिए ताकि आप आपके लिए, खुद के लिए डिसीजन ले सको. और खुद के लिए डिसीजन लेना मतलब ही फ्रीलांसिंग में जाना. एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल इन कमिंग डेज. सो इसके ऊपर बहुत सारी इंसाइट्स मैं MSCIT के सेशन में ऐड करने वाली हूँ. तो डू अटेंड दैट सेशन. वहां पे मैं काफी सारा बताऊंगी कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, क्या चल रहे हैं, और कौन से सेक्शंस में आप कर सकते हो. तो वहां पे आपको और इंसाइट्स मिलेंगे. यस शालोम, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली? देखो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि जो ऑनलाइन डिजिटल के प्लेटफॉर्म है, आजकल आप कुछ भी अगर परचेस करना चाहो, कुछ भी आपको अगर ड्रेस परचेस करनी है, सिंपल सा एग्जांपल है, शूज परचेस करनी है, तो पहले आप क्या करते हो? तो आप क्या करते हो? गूगल करते हो. गूगल में लिस्ट आती है शॉप्स की, फिर आप देखते हो, फिर अमेजोन पे जाते हो, फिर फ्लिपकार्ट पे जाते हो, बहुत सारे नियर बाय के भी सारे ऑप्शंस देखते हो कि कैसे जा रहे हैं करके, और फिर आप चूज करते हो. ये कैसे पॉसिबल हुआ? दिस इज द डिजिटल प्रेजेंस, क्योंकि वो कंपनी ने अपना जो डिजिटल मार्केटिंग है वो ऑलरेडी उधर रैंकिंग में लाके रखा है, जिसको SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, एडवर्ड्स बोलते हैं. और देखो सोशल मीडिया के थ्रू एंगेजमेंट होता है. आप अभी मेरे वेबसाइट पे गए, आपका सेशन बुक किया, लेकिन सुरेखा भोसले कौन है करके किसी को पता नहीं था, बट साइट को देख के एटलीस्ट यू फेल्ट कि ये लेडी कुछ तो यूजफुल बात करेगी, इसके लिए आप आ गए. तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिजिटल प्रेजेंस. तो डिजिटल मार्केटिंग में ये अपना डिजिटल प्रेजेंस कैसे रखना है, वो बहुत सारे अराउंड 18-20 टूल्स आर देयर इन डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग के पे भी मैं सेपरेट वेबिनार्स इन अपकमिंग डेज करने वाली हूँ, अनाउंस नहीं किया है, लेकिन स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन विजिटिंग माय वेबसाइट. और जो भी अभी के अटेंडीज है उनको मेलर्स भेजते ही रहेंगे, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में काफी सारा नॉलेज कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ सबके साथ, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिले. Graphic designing also everybody should learn. See, even if you do not learn number of tools, at least minimum Photoshop, Corel and all free tools, okay, that you should learn. क्योंकि अभी जिंदगी अगर आगे जाने वाला है ना,
तो ये सारे टूल्स का यूज ही होगा और बहुत डिपेंडेंसी होता है. अगर हम लोग को ये टूल्स नहीं आते हैं ना, वी हैव टू बी डिपेंडेंट. देखो हमारे अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, उसके पहले आपका खुद का जर्नी तो आपको एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा. एंड यू कांट बी अ बॉस डायरेक्टली. और आजकल के बच्चों को वही है कि मुझे तो बॉस बनना है, मैं तो बस ऑर्डर्स दूंगा. वैसे नहीं होता है. पहले आपको वो जर्नी वैसे ही स्लोली स्टडीली जाना पड़ेगा, खुद को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस को गेन करना पड़ेगा. एंड देन लेटर ऑन स्लोली एंड स्टडीली एज यू अचीव इन योर लाइफ, तो फिर आपके पास लोग रहेंगे. लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल सबको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इट विल एड वैल्यू. और ऑटोमेटिकली आपका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो खुद ही कर सकते हो, क्योंकि आप बच्चे हो तो इतना सारा तो आप पैसे देके तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते. तो स्लोली एंड स्टेडीली कैसे करोगे. और पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन में इसके ऊपर मैं इनसाइट्स ऐड करने वाली हूँ, तो डू अटेंड दैट सेशन. डिप्लोमा कोर्सेज में कैसे होता है ना, डिप्लोमा कोर्सेज में जो मैंने फोटोग्राफी है उसमें बताए थे, वो तो डिप्लोमा के बाद ही आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करके आप करियर परस्यू करना स्टार्ट करोगे. बट आई विल रेकमेंड कि एटलीस्ट कोई एक स्ट्रीम का ग्रेजुएशन करके आप वो डिप्लोमा कोर्सेज साइमल्टेनियसली करो, क्योंकि आपके एजुकेशन का भी एक वैल्यू रहता है. तो एटलीस्ट मिनिमम एजुकेशन यू शुड ऑप्ट फॉर एंड साइमल्टेनियसली यू शुड डू दिस डिप्लोमा कोर्सेज. जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, डेफिनेटली इट इज अ प्रॉपर डिप्लोमा, गवर्नमेंट एडेड डिप्लोमा. तो वो जो डिप्लोमा है वो MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्लोमा होते हैं, उनका सर्टिफिकेशन मिलता है. तो इट हैज द वैल्यू. और वो डिप्लोमा के बाद इफ यू वांट यू कैन गो फॉर डिग्री. और अगर नहीं जाना है तो उसके बाद भी आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, अगर आप स्किल पे इन स्किल्स में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और स्किल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो. जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आपके पास है, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर इट. तो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी आप जॉब के लिए भी जा सकते हो, अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर डिग्री कोर्स ऑल्सो. Yes, anyone else, any other doubts you have? So should I consider that you do not have any questions, because now again one more video clip we are going to see, and after that we will end the session. So thank you so much everyone for listening to me patiently, and just give me your feedback that how you find this session, which is the best course after 10th and 12th. Shalom, actually, see, best course, it depends on your interest. Okay, so first of all, you need to identify that which career option you will choose, and accordingly, you should choose the course. Okay, for digital presence, this blogging and graphic designing and all these courses, digital marketing, all these courses are important, but that is for the common thing. But if you want to do the courses specific to your career, then we need to understand, okay, that what career options you will choose, and then we can guide you in better way. Yes. So I will need here some feedback from you, that how you found this session, how has your all doubts cleared, सारे doubts clear हो गए क्या आपके, और कुछ insights add हुए कि नहीं ये session में. Just type in chat box. And which section you like most? कौन सा section आपको ज्यादा अच्छा लगा? I am really very glad that you people are liking it, and don't miss my further sessions also. Do book the spots of other webinars. Those will be definitely interesting for you, and it will just add more insights towards your career. So I will just show you now the video clip. Everyone is ready? Yes? Yes, everyone is ready. Just we will go towards the clip.
So students, passion, everyday passion is very important. So we have to be energetic, and we should just keep acquiring knowledge, keep listening, keep discussing. And yes, definitely, all of you will act on this. I hope so. And it really, I'm so happy that you people attended this session. So thank you, students, and bye bye. See you in next webinar.